ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಕೇಳುವ, ಹಾಡುವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಯೆಹೂದನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಯೆಹೂದನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು.
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಯಶಾನ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ರಿಂದ 31 ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾಕೋಬೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ? ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಕರ್ತನು ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರು, ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು, ದಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗಮ್ಯ. ಆತನು ದಣಿದವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಬಹುಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯೌವನಸ್ಥರು ದಣಿದು ಬಳಲುವರು, ತರುಣರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳುವರು. ಆದರೆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಅವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವರು, ಓಡಿ ದಣಿಯರು, ನಡೆದು ಬಳಲರು. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा होगा, हमने जाना है, और इस वचन के ऊपर बहुत बार शायद हमने प्रचार को सुना है, बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे पास्टर्स के जुबानी जो है इस वचन से हमने सामर्थ्य को पाया है। आज फिर एक बार इस महामारी के संदर्भ में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये वचन किस रीति से एक सामर्थ्य, एक आशीष को लेकर आता है, वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वचन जो 27वां वचन है, वो बहुत सुंदर रीति से लिखा है, इज़राइल व्हाई देन डू यू कंप्लेन दैट द लॉर्ड डजंट नो योर ट्रबल्स। यहां पर वचन कहता है इज़राइल, है परमेश्वर के लोगों, क्यों आप परमेश्वर के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो कि वो आपकी परेशानी को नहीं जानता, वो आपकी तकलीफ को नहीं जानता? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों परमेश्वर को नेगेटिव रीति से देख रहे हैं? या आपका क्या कंप्लेंट्स है परमेश्वर के सामने? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी चिंता करने वाले? आज फिर एक बार ये यशायाह का किताब, ये वचन हमको भी वही याद दिलाता है, परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका सोच, उसका विचार हमसे बहुत परे है। इसलिए जो है हम उनके विचारों को, उनके जो कार्यों को जो है समझने में असफल हो जाते हैं। यहां पर वचन लिखा है, हर एक व्यक्ति, इवन द यंग विल गेट टायर्ड, यानी जवान से जवान व्यक्ति भी जो है थक सकता है। थकने का अर्थ यहां पर क्या लिखा है? दे विल गेट वेरी, दे विल गेट टायर्ड। इसका मतलब क्या है? वो लोग थक सकते हैं, वो लोग निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं। आज इस संदर्भ में जहां पे मैं कहूंगा कि पैंडेमिक या ये सिचुएशन, ये डर शायद खत्म होने के कगार पर है, बहुत कम लोग अभी डर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है हमारे दिमागों में आज भी चल रहा है। और इस बीच में जो है वचन कहता है, ये वचन ही कहता है, ये परमेश्वर कहता है कि इवन द यंग, जवान से जवान लोग जो है थक जाएंगे। आज हमारे इवन मतलब जवान लोग भी, इसका अर्थ क्या है? जवान लोग जो है कहा जाता है कि सबसे ताकतवर जो पीढ़ी है वो जवान है, क्योंकि उन लोग जो है बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ताकत होता है उनमें। इसका मतलब है जवान लोग अगर थक सकते हैं तो एल्डर्स लोग या जो बूढ़े लोग हैं वो लोग गारंटी थकेंगे, जो बच्चे हैं वो गारंटी थकने वाले हैं, जो लेडीज है वो गारंटी थकने वाले हैं। यहां पर वचन वही सिखाने की कोशिश करता, हर एक इंसान, मानव
निराश हो सकता है, हताश हो सकता है, वो हार कर बैठा हुआ हो सकता है, या कोई चिंता में परेशान होकर निराशा में अपनी जिंदगी को जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है। और इसके बीच में एक वचन परमेश्वर देता है। यहां पर एक पक्षी का जो है उल्लेख किया गया है, एक बर्ड का। पता है कौन सा बर्ड? उकाब। हिंदी में से लिखा है उकाब की नाई जो है उड़ना जरूरत है। फ्लाई लाइक एन ईगल। ऐसा बहुत अच्छी रीति से वचन लिखा है। ईगल, इंग्लिश में ईगल जिसको कहते हैं, या आम शब्दों में चील या गिद्ध भी हम लोग कहते हैं। उकाब जो अच्छे हिंदी के शब्द में हम लोग सुन सकते हैं, इसको शब्द को लेकर हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं कहूंगा ये वचन जो है इसको इतना ऐसे हमने बहुत बार पढ़ा है, क्यों ना एक एग्जाम्पल लेकर एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के रूप में। आई होप कि आप लोग इस कहानी के जरिए ये वचन हमको क्या कहना चाहता है बहुत क्लियर रीति से हम स्पष्ट करेंगे। एक बार ऐसा, जैसे मैंने कहा, उकाब के जो है ये वचन एक पक्षी उकाब, ईगल के बारे में जो है बताने की कोशिश करता है। ईगल का एक स्पेशलिटी है, वो हम लोग इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे। एक बार ऐसे ही ईगल जो उकाब है वो आसमान में यहां वहां उड़ता हुआ कुछ नीचे आ गया है, वो कुछ ढूंढ रहा है या वो घूम रहा है। वो घूमते घूमते जो है कुछ समय के बाद अचानक एक कौवा यानी क्रो जो है उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर जो है आकर बैठ जाता है। अब उसके पीठ पर आकर बैठ जाता है और वो सिर्फ बैठता नहीं है, वो अपना चोंच जो है इसके गर्दन पर मारते रहता है लगातार। पहले उसने अपना भोज को डाला, और आपको पता होगा उसका जो पंजा है कौवे का वो भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत शार्प होता है, इसलिए वो झाड़ पे बहुत अच्छे रीति से रख के बैठता है। और अभी जो है ये चील वो ईगल के ऊपर बैठा हुआ है, वो क्लॉ को, वो जो अपने जो बैठने का तरीका है, अपने पंजे को उधर लगाकर और गर्दन के ऊपर वो चोंच मार रहा है, यानी टोच रहा है, दर्द दे रहा है। अब ईगल को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, और इस दर्द में अब ईगल क्या करना चाहिए? क्या गिद्ध जो है वो उकाब को क्या सोल्यूशन है? एक तरीका है कि उसको ऐसे वैसे करके जो है वो गिरा दे, लेकिन ये ईगल जो है बहुत ही अलग टाइप का ये ईगल है। ये ईगल जो है ना उसको ढकेलता है, ना वो कोशिश करता है उस कौवे को गिराने का, ना उस कौवे से वो कुछ बात करता है, लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है अपने पंखों को जो है और तेजी से बढ़ाने लगता है। उसका स्पीड पंख का और बढ़ाने लगता है, और धीरे 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 पंखों को जो है तेज करते हुए, जैसा पंख तेज होगा तो क्या होगा, ईगल का फ्लाइट जो है वो और ऊपर हो जाएगा। वो और ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है, और इतने ऊपर उड़ता है कि एक ऐसा एल्टीट्यूड या एक ऐसा स्तर आता है जहां पर ईगल उड़ रहा है लेकिन कौवा उड़ नहीं पाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईगल बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है, लेकिन कौवा या बाकी बहुत सारे पक्षियां उतने ऊपर नहीं उड़ सकते। तो ये कौवा जो है उतने ऊपर तक नहीं उड़ पाता है। तो उसको समझ जाता है कि अगर यहां पर मैं छूट जाऊं तो प्रॉब्लम होगा। ये कौवा, जैसे वो ईगल आगे 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 जाते रहता है, कौवे का जो है हम लोग कह सकते हैं कि हम भी अगर इंसान है ऊपर जा रहे हैं तो सांस लेने में जो है तकलीफ होती है, वैसे कौवे को भी तकलीफ हुआ। और जैसा वो ऊपर गया, अचानक कौवा जो है उसको चोंच को छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है, और अपने आप जो है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के शायद कौवा जो है नीचे एक सर पर आकर वो उड़ने लगता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन यहां पर ईगल ने एक सोल्यूशन को दे दिया है हमारे जीवन में, कि अगर वो कौवा, अगर वो तड़पता, वो ये करता, क्योंकि हम जानते हैं कौवा जो है हमेशा ग्रुप में रहता है। अगर वो किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो ग्रुप में, अगर वहीं पर वो लड़ता वो ईगल, तो सारे कौवे आके उसको नोच सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, अपने पंखों को जो है फैलाते हुए वो ऊपर की ओर उड़ा, इतना ऊपर उड़ा कि कौवा सांस लेने प्रॉब्लम हो गया और कौवा नीचे गिर गया। इससे क्या सीख मिलती है, ये कहानी से हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल, फ्लाई लाइक एन ईगल। एक उकाब की नाई जो है उड़ना है। मैं ये वचन से एक बात समझ में आता है, वी एज क्रिश्चियंस आर कॉल्ड लाइक एन ईगल। एक ईगल की तरह, एक उकाब की तरह हमारा बुलाहट है मसीही जीवन में। ये एग्जाम्पल जो है एक पास्टर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन इससे क्या सीख मिलती है ये हमें समझना जरूरी है।
व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? अब जो ईगल उड़ रहा है, जो ईगल नीचे आके घूम रहा है, वो कौन है? वो हम लोग हैं। और जो कौवा उसके ऊपर आकर जो उसको परेशान कर रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ये जो तकलीफें हमारे जीवन में आए, ये कौवे की तरह जो है हमें नोचती है, हमें तकलीफ देती है, हमें दर्द देती है। आज जो है इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है निराशा में बैठे हुए हैं, उन्हें दर्द हो रहा है, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर बैठा है। लेकिन ये कहानी, ये वचन हमें बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा सीख देती है। ये समझना बहुत जरूरी है। आज अगर वो ईगल हम लोग है, तो आज अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई हमारे पीठ पर आ गया है या कोई हमारे पीछे से आके जकड़ता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हो सकता है हम लोग अपने हाथ को ऐसे मारे, हम लोग अपने पैरों से जो है मारे, या हम लोग गर्दन से अपने सर को लेके उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें दर्द दे रहा है। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। ये इंसान का ऐसा सोच है। लेकिन वो ईगल ने ऐसा नहीं किया। वो ईगल जो है ऊपर उड़ता गया, जो उसकी क्षमता है। और आज परमेश्वर अगर ईगल की तरह हमें बुला रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी कौवा है, कौवे का अर्थ है हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में परेशानी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब को खो दिया है। ये आपके जीवन में जो है वो कौवे की परेशानी हम लोग देख सकते हैं। आपने बहुत जो है जॉब को खोया है, बहुत सारे लोगों का सैलरी कम हो गया है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत प्रॉब्लम्स को चल रहा है, बहुत सारे घर में बीमार व्यक्ति है, बहुत कुछ लोगों ने जो है अपनों को खोया है और वो दुख में आज भी जी रहे हैं। वो दुख को जो है वो लोग पार नहीं कर पाए हैं। हमने अपनों को खोया है। और ऐसे बहुत सारे टेंशन्स, अभी पढ़ाई का टेंशन, बच्चों का क्या होगा, ये सारी चिंता हमारे दिमागों में, हमारे हृदयों में लेकर, हमारे जीवन में लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं ये कौवा हमें बहुत परेशान कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जिसे मैंने लास्ट टू लास्ट संडे भी कहा, यह वचन भी हमें सिखाने की कोशिश करता है। हमें उकाब की तरह बुलाया गया है, ईगल की तरह बुलाया गया है, ना कि जो है सिंपल फाइट करने के लिए। हमें ईगल की तरह ऊपर उड़ने की जरूरत है। अब ऊपर उड़ने का अर्थ क्या है, यह हमें समझना जरूरी है। ऊपर उड़ने का मतलब क्या है? भजन संहिता 121 साम नंबर 121 क्या कहता है? आई लुक टू द माउंटेन्स, वेयर विल माई हेल्प कम फ्रॉम? मैं जब पर्वतों की ओर देखता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? ನಾನು ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? मेरी सहायता, मेरी मदद मेरा परमेश्वर की ओर से, ऊपर की ओर, पर्वत की ओर, यानी कि ऊपर की ओर देखना। ऊपर कौन है? हम लोग हमेशा ऊपर की ओर देखने का अर्थ है परमेश्वर की ओर देखना। वो ईगल हमको यही सिखाता है। जब वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, इसका मतलब हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए बढ़ने की जरूरत है। हम लोग का ध्यान, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन हमारे कौवे के ऊपर है। ये प्रॉब्लम, कैसा मुझे जॉब मिलेगा, कैसा मेरा शादीशुदा जिंदगी अच्छा होगा, कैसे मेरे बच्चे का करियर सेट होगा, कैसे मेरा सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या मैं करूं, कहां पर मैं जाऊं, क्या किस बारे में मैं सोचता रहूं। और जो खो गए हैं उसके बारे में हम लोग जो है सोचते रह रहे, अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, अरे ये बीमार है, क्या करूं क्या नहीं। हमारा सारा ध्यान हमने इस कौवे के ऊपर लगा दिया है। और ईगल सिखाता है हमें इस कौवे से ध्यान हटाकर अपने उड़ान को ऊपर उड़ाओ। आज वो वचन हमको सिखाने की कोशिश करता है, हमें भी अपना ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर न देखते हुए हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना जरूरी है। हम अक्सर ये वचन को देखकर, हम परमेश्वर को देखते तो है, हम परमेश्वर को देखते क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे विश्वास है, बहुत अच्छा है विश्वास। लेकिन ये विश्वास को ऊपर लेकर जाना जरूरी है। सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। वो ईगल अगर सिर्फ ऊपर देखता तो वो ऊपर नहीं पहुंचता, वो अपने पंखों को जो है उड़ा रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर कुछ बोझ ईगल के ऊपर रख दिया है, कुछ बोझ अगर आपके ऊपर रखा है, तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे उड़ना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने पंख
और ज्यादा ताकत से बढ़ाया। इसका मतलब हमारे जीवन में अगर कोई कौवा, कोई बोझ, कोई परेशानी, कोई चिंता हमारे जीवन को जो है जकड़ती है, बोझ डालता है, तो वचन, ये कहानी हमें सिखाता है हमें और जोर से पंख को हिलाना है, और सामर्थ के साथ प्रार्थना करना है, और सामर्थ के साथ आराधना वचन में जाना है, और सामर्थ के साथ परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग देखते हैं परमेश्वर को, लेकिन कभी ये नहीं करते कि परमेश्वर में हम और बढ़े। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में और ज्यादा बढ़ने की हमारी जरूरत है। हमें प्रॉब्लम्स मत देखो, हमारी चिंताओं को मत देखो, अपना ध्यान वहां पर परमेश्वर के ऊपर लगाकर जो है परमेश्वर की ओर बढ़ो। और जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जैसे ईगल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक समय ऐसा आया कौवा को खुद को प्रॉब्लम हो गया सांस लेना और कौवा गिर गया। वैसे हमारे जीवन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है आपके जीवन में, आपने किसी को खोया है जिसकी वजह से आप वचन से भी दूर हो रहे हो, शायद आपके जिंदगी से आप दूर हो रहे हो, या आपको जॉब नहीं है, आपको सैलरी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जब बढ़ते हैं वो प्रॉब्लम अपने आप गिर जाएगा और आपके जीवन में एक नई गवाही परमेश्वर देगा। वो कौवा अपने आप गिर जाएगा। कोई शैतानी शक्ति अगर आपके ऊपर हावी है, जब आप और परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप और परमेश्वर के नजदीक में बढ़ते हैं, वो शैतान, अगर कौवे के रूप में शैतान आया है, वो भी अपने आप गिर जाएगा। आज वचन आपको इनकरेज करना चाहता है, ये कहानी हमें इंस्पायर करना चाहता है, इसलिए वचन कहता है आखिर में, अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन कर सकता है? 31st वर्स, बट दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर हेल्प विल फाइंड देयर स्ट्रेंथ रिन्यूड। मैंने जैसे कहा, हमें और ताकत लगाने की जरूरत है परमेश्वर में बढ़ने का, लेकिन खुशखबर यह है कि आपको वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दे के रखा है, सिर्फ हमें उसके ऊपर भरोसा जताना है। यहां पर लिखा है, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल फाइंड देयर स्ट्रेंथ रिन्यूड। आप और ताकत को पाएंगे परमेश्वर में बढ़ना, जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं। भरोसा दिखाने का मतलब यह नहीं है कि रोना है, भरोसा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा टेंशन में बैठे रहना है, भरोसा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम्स हो गया तो हम लोग चिड़चिड़ कर रहे हैं, हम अपने घरों में जो है परिवारों को सुना रहे हैं, परिवारों के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, परिवारों को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। भरोसा दर्शाने का मतलब ये नहीं है किसी को हमने खोया है और उसी के दर्द में, उसी के याद में हम खोए हुए हैं। भरोसा जताने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे घर में बीमार है और हमेशा हम उसके बारे में टेंशन लेके बैठे हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसके बारे में मत सोचो, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जितना आप चिंता कर रहे हैं, जितना आप अपना फोकस, अपना समय दे रहे हैं, वो समय परमेश्वर से आप चुरा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत लोग जो है ऐसी चिंता के समय में ज्यादा प्रेयर करना चाहिए, ज्यादा वचन में जाना चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में हो जाता है। हम लोग का स्तर कम हो जाता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी कम होता है। टुडे गॉड इज सेइंग टू इंक्रीज द स्पिरिचुअलिटी। आज हमारे जीवन में ये जरूरत है। बहुत जल्द ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम एक रिन्यूअल, या हम एक नए सामर्थ्य के साथ, नए आत्मिकता के साथ, जो परमेश्वर के करीब में आकर मिलता है, उसके साथ जो है हम नई जिंदगी को शुरू करें। आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगता है, जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हो, सिर्फ विश्वास करना नहीं, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ रुकना नहीं, सिर्फ आप क्रिश्चियन हैं इससे कुछ नहीं होता है। क्रिश्चियन को जो है परमेश्वर के नजदीक, उसके स्पिरिचुअलिटी में, उसके अनॉइंटिंग में, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जो है और बढ़ने की जरूरत है, और ऊपर उड़ने की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है, यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल, यू कैन फ्लाई लाइक एन ईगल। इसके बाद वचन कहता है, आप दौड़ोगे फिर भी आप थकोगे नहीं, आप जितना चाहे चल के जाओ, आपको जो है कभी कोई भी जो है बोलते ना थकान महसूस नहीं होगी। ये आशीष परमेश्वर देता है, क्योंकि एक लेवल आ जाता है हमारे जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये वचन भी वही सिखाता है। इवन द यंग विल बी एग्जॉस्टेड, जवान भी हताश निराश होंगे। आपके जीवन में निराशा, हताशा, बोलते ना सारा प्रॉब्लम, सारी चिंता आएंगी जरूर, लेकिन हमारा ध्यान वहां ना रखते हुए हम लोग परमेश्वर की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। आज के संदर्भ में मेरा हर एक टॉपिक जो है वहीं पर रिलेट हो रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली भी जो है ये एहसास कर रहा हूं कि परमेश्वर हमसे भी ये चाहता है।
हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम लोग ग्रो कर रहे हैं? ये अपने आप से सवाल पूछिए। यू आर कॉल्ड लाइक एन ईगल। आज आपके अगर कौवे को, आपके जीवन से उस बोझ को अगर हटाना है, उसको मत देखो, परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के वचनों में और बढ़ो, और परमेश्वर के वचन से जो है दूर मत हो जाओ, क्योंकि यही आपको इस शैतान से, इस चिंता से, इस प्रॉब्लम से, हर एक चीजों से आपको छुटकारा देगा और एक नयापन परमेश्वर देने वाला है। फ्लाई लाइक एन ईगल, उस उकाब की तरह अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना उड़ान परमेश्वर की ओर लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज परमेश्वर इन वचनों से जो है हमें वही बात सिखाने की कोशिश करता है कि वी आर कॉल्ड टू बी लाइक एन ईगल। एक उकाब की तरह उड़ने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। ये हम लोग एक टेस्टिमनी, एक गवाही लोगों के सामने रखेंगे कि इस सिचुएशन में भी जो है हम लोग का उड़ान उतना जबरदस्त है, उतना विश्वास है कि लोग हमारे विश्वास को देखकर ही परमेश्वर से मिलन करेंगे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ये एक अलगाव को लेकर आता है सोसाइटी में कि क्रिश्चियंस क्यों अलग है, इसकी वजह से अलग है। तो आज ये कॉलिंग परमेश्वर देता है, बी लाइक एन ईगल, फ्लाई लाइक एन ईगल, उस उकाब की तरह ऊंचा, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर में और अधिक बढ़ो और अपने कौवे को अपने जीवन से अपने आप गिरा दो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है, थैंक यू जीसस। इस वचन के जरिए हम सबों के जीवन में तू आशीष कर, बातें कर परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन।
ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಇಂದಿನದ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಹದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ವಚನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜನ್ಮದಿನ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೆನ್ನುವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.